Hello everyone, good morning to all of you. Welcome once again to my official YouTube channel Biology at Two Fingers. I am Ajay Prakash welcoming you to all once again. And up till now we have completed chapter number 3 of unit number 1 of class 12, that is reproduction in human being. And today I am starting with a new chapter, that is what reproduction in organism. This chapter is very simple, and this chapter also not has much content, so we will cover this chapter as soon as possible, because in chapter number 3 it's taken a lot of time because this was a very hard content chapter. So अब यहाँ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है। जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं आप वहाँ कमेंट बॉक्स में जाके छोड़ सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाएं। तो द फर्स्ट टर्म इज हियर, दैट इज व्हाट रिप्रोडक्शन। So we can easily define reproduction, that reproduction is a biological process. We can define reproduction because reproduction is a biological process by means of which an organism produce young ones of their own kind. यानी reproduction एक biological process है जिसके द्वारा कोई भी organism अपनी ही तरह का एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन है। इन शॉर्ट, प्रोड्यूसिंग यंग वंस, प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जनरेशन बाय generation. Actually, in reproduction there are certain kind of phases. So a particular organism just arrived on the earth, and till death, so the period from birth till death, or we can say that natural death, here we will not consider accidental death. This period is known as लाइफ स्पैन। ठीक है, यानी लाइफ स्पैन क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से लेकर जब उसकी मृत्यु होती है नेचुरल तरीके से, उस पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। तो द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। ओके, एंड नाउ वी कैन डिवाइड द लाइफ स्पैन इनटू 4 phases. Because a particular organism will come, then after it will grow and will reach to reproductive maturity. After that there will be aging, and after that there will be death. So the first phase here that we can take in the life span is here what? Birth. So life span contains the first one, birth. The second phase, that is juvenile. Juvenile phase is the phase of growth in which a particular organism do not get reproductive maturity but is still in the growing phase. Is here reproductive phase. Reproductive phase. The phase number 4, aging. So the life span can be divided into the first, birth, juvenile phase. Actually, what is juvenile phase? Juvenile is the phase in which a particular organism grows but do not get reproductive maturity. And in a reproductive phase, organism again
or gain, we can say that reproductive maturity. The next phase is here, what we can say that aging or maturation. We can say that aging or maturation, and the last one is here death. So maturation, or we can say that aging, in the case of animals, and in the case of plants, the term that is used is here senescence in the case of प्लांट्स. ठीक है, तो ये टोटल क्या है लाइफ स्पैन. तो लाइफ स्पैन को हम कह सकते हैं दिस इज लॉन्गेविटी ऑफ, दिस इज व्हाट लॉन्गेविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कितने दिन तक कोई ऑर्गेनिज्म जीवित रहेगा वही इसकी लाइफ स्पैन होती है. ये हम टोटल 5 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, बर्थ, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, मैचुरेशन और एजिंग. यहाँ पे मैचुरेशन का है या एजिंग के है. कहाँ एनिमल के केस में, प्लांट के केस में वो क्या होता है बेटा सेनेसेंस होता है, और लास्ट में क्या होती है डेथ, और वो डेथ कैसी होगी नेचुरल होगी. नाउ वी विल कंसीडर लाइफ स्पैन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स, एंड इन फ्रॉम दिस टॉपिक लाइफ स्पैन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. सो वी विल कंसीडर smallest लाइफ स्पैन. ये बेटा होता है मे फ्लाई का. मे फ्लाई ये 24 आवर्स का होता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं 1 डे इंसेक्ट. यानी मे फ्लाई का सबसे कम लाइफ स्पैन होता है 24 घंटे का, इस वजह से इसको 1 डे इंसेक्ट भी कहा जाता है. एक दिन के अंदर इसकी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती हैं. उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन दिस वन इज ऑफ 140 to 150 years. ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं पैरेट, पैरेट का नियरली जो है, सॉरी वी विल डिस्कस हियर पैरेट. पैरेट 140 years. देन आफ्टर एलिफेंट, एलिफेंट 70 years. एंड वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डॉग एंड बटरफ्लाई. डॉग यहां पे देखते हैं, डॉग 22 years. बटरफ्लाई यहां पे आप देखेंगे 1 to 2 weeks. यानी काऊ 15. क्रोकोडाइल 60 years. काऊ 15 years. crocodile 60 years. banyan tree near about 400 years. Okay, we can take the example of here rice 3 to 7 months. So these were the life span of certain kind of things. We can take another example of horse here, nearly 40 years. So this was all about the life span. एक बार फटाफट देखते हैं. जो स्मॉलेस्ट लाइफ स्पैन है मे फ्लाई की 24 घंटे, एक दिन या 1 डे इंसेक्ट कहा जाता है. लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन टॉर्टोइज 140 से 150 साल की होती है. इसके अलावा पैरेट की 140 इयर्स की भी यहाँ पे भी देख सकते हैं. तो टॉर्टोइज और पैरेट नियरली सेम होते हैं. उसके बाद एलिफेंट 70 इयर्स, हॉर्स 40, डॉग 22, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, cow 15, crocodile 60, banyan tree 400 years, rice 3 to 7 months. We can take the example of banana also. So in the case of banana there will be 2 to 3 years of the life span. banana में 2 से 3 साल की होती है. यहाँ पे लिख सकते हैं आप बनाना में 2 to 3 years.
we'll discuss here actually what is the purpose of reproduction. So purpose of reproduction. So the purpose of reproduction is here. We will discuss 2 or 3. Continue and preserve the species. यानी किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी हो जाता है. दूसरा, पास जेनेटिक डाइवर्सिटी. पास जेनेटिक डाइवर्सिटी. एक्चुअली ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स आर मोर एडाप्टिव. तो जैसे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वेरिएशन होता जाता है वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स में जो है वो क्या होते हैं, एडाप्टेशन भी बढ़ता जाता है. तीसरा, कीप इवोल्यूशनरी चेन गोइंग. कीप इवोल्यूशनरी चेन गोइंग. तो बेटा ये 3 पर्पस है बेसिकली किसके, रिप्रोडक्शन के. ये क्या करता है, किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूएशन के लिए बहुत जरूरी है. स्पीसीज को बनाए रखता है, उसको एक्सटेंड नहीं होने देता है. डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है. क्यों? क्योंकि उसके द्वारा क्या होता है, एडाप्टेशन होता है, ऑर्गेनिज्म बेटर सर्वाइव करता है. और तीसरा हमने बताया जो एक इवोल्यूशनरी चेन है उसको क्या करता है, बनाए रखता है, वो चेन टूटने नहीं पाती है. तो ये तो था क्या, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन. अब हम यहां से देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. Let's quickly recap types of reproduction. So बेटा 2 मेजर टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के. The first one is here asexual reproduction. पहला है asexual reproduction and the second one is here sexual reproduction. यानी 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फटाफट देख लेते हैं. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व. सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व. यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे क्या होता है, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. यहाँ पे बेटा 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे नो फ्यूजन ऑफ गैमीट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमीट बनते हैं और ना उनका फ्यूजन होता है. हियर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट. फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस. यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते भी हैं और उनका फ्यूजन भी होता है. यहाँ पे क्या होता है, ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन. क्योंकि यहाँ पे जब गैमीट्स नहीं बनेंगे तो केवल एक सेल डिवीजन होगा. हियर बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस. यहाँ पे बेटा क्या है, दोनों तरह का सेल डिवीजन हो रहे हैं क्योंकि गैमीट का प्रोडक्शन मियोसिस से होगा और जाइगोट बनने के बाद डेवलपमेंट जो होगा वो माइटोसिस से होगा. बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि केवल एक माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है. क्यों? क्योंकि गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वेरी लेस वेरिएशन. वेरी लेस वेरिएशन ड्यू टू सिंगल पेरेंट. यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इस वजह से 2 कैरेक्टर कंबाइन नहीं करते. इस वजह से बहुत कम या ना के बराबर वेरिएशन प्रोड्यूस होता है. कहाँ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. हियर मोर वेरिएशन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पेरेंट. यानी बेटा यहाँ पे
दो पेरेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से दो अलग अलग कैरेक्टर जब कंबाइन करेंगे तो ज्यादा वेरिएशन होगा। और वहां पे क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा था, इस वजह से वहां पे कम वेरिएशन है। इस वजह से ये लेस एडाप्टिव होते हैं और ये क्या होते हैं, मोर एडाप्टिव होते हैं। इनमें एडाप्टेशन कम होता है और इनमें एडाप्टेशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट हियर, ड्यू टू लेस वेरिएशन क्लोन्स आर फॉर्म। Clones are formed. Actually, what are the clones? Clones are the organisms that are genetically and morphologically same to the parents. यानी डिट्टो कॉपी होते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं उसी तरह से क्या होंगे, उनकी ऑफस्प्रिंग होगी। तो क्लोन्स बनते हैं कहाँ, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड हियर क्लोन्स आर नॉट फॉर्म, क्लोन्स आर नॉट फॉर्म ड्यू टू मोर वेरिएशन। बेटा यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा वेरिएशन होता है, इस वजह से क्लोन्स नहीं बनते। इस वजह से आपने देखा होगा, अगर कोई एक पेरेंट्स है, उसके 4 संतानें हैं, तो चारों थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें होगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम डिट्टो कॉपी हो, एग्जैक्ट कॉपी हो। और यहाँ पे क्लोन्स बनते हैं। एक्चुअली क्लोन क्या होते हैं, क्लोन्स यहाँ पे हम आपको बताते हैं। क्लोन्स आर genetically and morphologically identical to their parents। ठीक है बेटा, तो क्लोन्स जेनेटिक रूप से और बाहर से अगर आप देखोगे मॉर्फोजेनिक रूप से, तो वो क्या होते हैं, पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। तो ये हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, कोई गैमेट का बनना या फ्यूजन नहीं हो रहा है, केवल एक माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, बहुत लेस वेरिएशन हो रहा है, और यहाँ पे क्लोन बनते हैं। यहाँ पे क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन भी हो रहा है, मियोसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन दोनों, मियोसिस होगा गैमेट को बनाने के लिए और माइटोसिस होगा जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे और क्लोन्स नहीं बनेंगे क्योंकि ज्यादा वेरिएशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, बताया हमने कि ज्यादा वेरिएशन होता है, क्लोन इसी वजह से नहीं बनते। कहाँ मिलता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, दिस वन इज कॉमन इन मोनेरास। मोनेरास मतलब जो मोनेरा के हैं। अगर देखा जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ मिलता है, तो दिस इज कॉमन इन मोनेरास, प्रोटोजोआ एंड लोअर इनवर्टिब्रेट्स। यानी बेटा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कहाँ कॉमन है, मोनेरा यानी जो आपकी बैक्टीरिया वाली है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, और जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है उसमें इस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें आप, in lower invertebrates we can take the example of sponges, jellyfish, flatworms and many annelids यानी जो फाइलम एनिलिडा है उसके मोस्ट मेंबर्स, और मोनेरा, प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस, जेलीफिश, फ्लैटवर्म और मैनी जो भी हैं आपके कौन, एनिलिड्स, उसमें ये बहुत ही कॉमन मोड है रिप्रोडक्शन का। बात करें आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दिस इज फाउंड इन द केस ऑफ हायर एनिमल्स such as chordates and higher plants also। ये लोअर एनिमल और लोअर प्लांट्स में हो रहा था जो ज्यादा डेवलप नहीं है, और ये हायर एनिमल और हायर प्लांट्स में हो रहा है जो कि ज्यादा से ज्यादा डेवलप है। तो ये बेटा हमने आपको बताया जो रिप्रोडक्शन के टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Now we will discuss in detail about asexual reproduction and sexual reproduction. So we will quickly take a look on asexual reproduction. तो मैं बेटा देख लेते हैं asexual reproduction। हमने आपको बताया इन asexual reproduction सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व,
सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। अब बेटा ये हम आज केवल इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके टाइप कौन कौन से हैं, तो फटाफट देखेंगे, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो ओके, सो फर्स्ट वन इज ए फिजन। ठीक है, तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फर्स्ट कैटेगरी इज देयर ऑफ फिजन। और फिजन में हम देखेंगे दो तरह के फिजन, एक देखेंगे हम बाइनरी फिजन और हम दूसरा चेक करेंगे यहां पे मल्टीपल फिजन। सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फिजन। फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है टू और मोर डॉटर सेल्स में टूट जाती है। दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन जिसमें दो डॉटर सेल्स बनती है और मल्टीपल फिजन जिसमें मैनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब बाइनरी फिजन में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, longitudinal binary fission, transverse binary fission, obligate binary fission. So we will discuss all these in the next video. This one is found in Keratium. ये बेटा केराटियम क्या होता है, डायनोफ्लैजेलेट होता है, डायनोफ्लैजेलेट यानी जो केराटियम है ये है क्या, डायनोफ्लैजेलेट। फर्स्ट बाइनरी फिजन बेटा कहाँ होता है, पैरामीशियम और पैरामीशियम के साथ साथ एक और है प्लेनेरिया। तो यहाँ पे हमको ये मिलने वाला है, ये मिलने वाला है यूग्लिना एंड ट्रिप्नोसोमा। तो और मल्टीपल फिजन बेटा कहाँ मिलता है, मल्टीपल फिजन मिलेगा आपको प्लाज्मोडियम में, यानी मल्टीपल फिजन हमें कहाँ मिल रहा है, प्लाज्मोडियम में मिल रहा है फिजन। अब हम यहाँ पे दूसरा देखेंगे बडिंग। ठीक है, तो पहला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो कौन सा था, फिजन। अब हम बडिंग देखेंगे, बडिंग में हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे ईस्ट और हाइड्रा का, हम लेटर ऑन इसको देखने वाले हैं। तीसरा हम यहां पे देखेंगे फ्रैगमेंटेशन, कंसीडर मॉल्ड्स, लाइकेन्स, फ्लैटवर्म्स, मॉसम स्पॉन्जेस। ठीक है, तो बेटा ये सभी किसके एग्जांपल होते हैं, फ्रैगमेंटेशन के। एक और देख लेंगे हम रीजनरेशन, में हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे प्लेनेरिया का। तो ये था हमारा टाइप नंबर 1, दिस वन इज टाइप नंबर 2, 3, 4, दिस वाज द फोर्थ, वी विल कंसीडर हियर 2 मोर, दिस वन इज फिफ्थ वन। पांचवा है आपका स्पोर फॉर्मेशन, और take the example of bacteria, fungi, green plants। ठीक है, तो ये है स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट में है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम देखेंगे प्रोपागेशन बाय रूट। एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे दो तरह का वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक है आपका आर्टिफिशियल और दूसरा हम कंसीडर करेंगे नेचुरल का। तो ये पांचवा था, ये छठवां है। आर्टिफिशियल में बेटा हम कंसीडर करेंगे कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग।
और यहाँ पे स्पेलिंग सही करते हैं LAY। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, यहाँ पे नेचुरल में हम कंसीडर करेंगे बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीफ। सो ये टोटल है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप एक बार फटाफट देखते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजन। फिजन में पैरेंट बॉडी क्या करती है, दो या दो से अधिक पार्ट्स में स्प्लिट करती है। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दो तरह का। बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिगेट। बाइनरी फिजन जो लॉन्गिट्यूडनल है यूग्लिना ट्रिक्रोसोमा, ट्रांसवर्स पैरामेशियम प्लेनेरिया, ऑब्लिगेट किसमें है, केराटियम में या डाइनोफ्लैजेलेट्स में। मल्टीपल फिजन आपका किसमें हो रहा है, प्लाज्मोडियम में। बॉडी में क्या होता है, a bulb like structure or outgrowth is formed that later on detach from the parent and form new individual। तो ये किसमें हो रहा है, ईस्ट और हाइड्रा में। फ्रैगमेंटेशन में क्या करते हैं, जो प्लांट बॉडी या हाइफा होता है वो टूटता है दो या दो से अधिक खंडों में, और जो ईच फ्रैगमेंट होता है वो नया इंडिविजुअल बना लेता है। मॉल्स, लाइकेंस, फ्लैटवर्म और स्पॉन्जिस। नेक्स्ट रीजनरेशन। एक्चुअली रीजनरेशन एक एक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है जिसमें कट या जो डिकेड पार्ट है वो रीग्रो कर जाता है, जैसे आपका प्लेनेरिया है। यहाँ पे हाइड्रा का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, इन द केस ऑफ फंगस, इन द केस ऑफ एल्गी आल्सो। एंड हियर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू organisms or new plants are obtained from its parts such as root, stem and leaf. This is natural and we can take it artificially such as by layering, grafting and we can say that cutting। तो ये बेटा सभी तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये एक वेव चार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन। एक और है इसमें माइक्रोटोमी, एपोमिक्सिस, वो अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब एक्सेप्शन की बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस पसंद आया देन यू कैन प्रेस द like button. You can also subscribe the channel, share with your friends, and that's all for today. Have a nice day and keep smiling. Jai Hind.